Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा, in this video we're gonna be covering clustering. ठीक है, तो clustering में ना we had two types. एक था जो हमने क्लास में किया which was k means, और एक था fuzzy c means. तो fuzzy c means, um, both of them are pretty similar. इनमें the thing which both of these have in common is distance. Distance हमने ना इन दोनों में निकालना होता है ना. Distance का जो formula था it was, let's say we have two coordinates. ठीक है, x1 y1 x2 y2. ठीक है, for the distance it's just going to be the Euclidean distance formula which was x1 minus x2 squared plus y1 minus y2 squared का under root. ठीक है, in this specific case one of these are always one of these two coordinates, it's just going to be the centroid, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा ना it's gonna be the one which we're calculating the distance for. ठीक है, k means में ना the difference between k means and c means, k means में ना you आपके पास जो एक पॉइंट होता है ना, ठीक है, लेट्स से आपका पॉइंट है x1, y1. ठीक है, this can only be a part of one class. ठीक है, या one centroid या one cluster. ठीक है, in the case of fuzzy c means उसमें ना आपका एक पॉइंट द सेम पॉइंट. ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि इट कैन बी अ पार्ट ऑफ बोथ क्लासेस या बोथ क्लस्टर्स. जितने भी आपके नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं ना, इट्स कैन बी अ पार्ट ऑफ एवरी सिंगल क्लस्टर. और हमारे पास वहाँ पे आ जाती है मेंबरशिप वैल्यूज़. दिस जस्ट मीन्स के हाउ मच अ पॉइंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ क्लास. ठीक है, आपका एक पॉइंट है ना, वो कितना किस क्लास में ना. तो एन एग्जांपल वुड बी, लेट्स से आपके पास डॉग ब्रीड्स में यू कैन क्रॉस देम, राइट. तो आपके पास एक डॉग होता है, इट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ मल्टीपल ब्रीड्स. तो इफ़ यू हैव अ क्रॉस बिटवीन अ जर्मन शेपर्ड, ठीक है, इसको बस GS लिख देते हैं, एंड लेट्स से अ लेब्राडोर. ठीक है, L. तो इट्स कैन बी उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा ना, इट्स कैन बी 0.5 एंड 0.5. इट्स कैन बी हाफ अ जर्मन शेपर्ड एंड हाफ अ लेब्राडोर. तो इन दिस केस इट्स कैन बी उसकी जो मेंबरशिप वैल्यूज़ होंगी ना, वो 0.5 होगी. तो इट्स दिस इज़ जस्ट टू से कि इन द केस ऑफ फजी सी मीन्स आपका जो एक पॉइंट है ना, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ बोथ क्लासेस या बोथ सेंट्रॉइड्स. ठीक है, that's the only difference between them. तो for the numerical steps, right, k means और fuzzy c means में same चीज़ करनी होती है. the only additional step in fuzzy c means is कि आपने membership values निकालनी होती हैं. ठीक है, और उससे you use those to update the centroids. इसमें you just use the distance. अब we're gonna move on to an example. ठीक है, k means is pretty simple, so हम उसी से ही start करेंगे. लेट मी, मैं पॉइंट्स निकाल लूँ एक दफ़ा. ठीक है, तो वी हैव अ फ्यू पॉइंट्स ओवर हियर. ठीक है, A is 1,1, B is 2,1, C is 3,2, D is 8,8, E is 9,8, and F is 8,9. ठीक है, अब हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए जो हमारे पास सेंट्रॉइड्स की इनिशियल वैल्यूज़ है ना. C1 is equal to 1,1, C2 is equal to 8,8. Okay, ठीक है, this is the information we've been given for this question. सबसे पहले ना we need to make a table, and this is just going to be a simple distance table. ठीक है, आपके पास सारे coordinates होंगे और आपने ना उनका distance निकालना होगा from each centroid. तो it's going to be like this: A, B, C, D, E, F. यहाँ पे हमारे पास C1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास C2 आ जाएगा. C1 was 1,1, C2 is 8,8. ठीक है,
I'm just gonna solve one example, ठीक है, उसके बाद I'm just gonna write the answer down क्योंकि मैंने solve किया था to save time. इसमें ना for the distance all you need to do is, let's say we're calculating 3 comma 2, ठीक है. The coordinate we're specifically calculating for is C, which was 3 comma 2. तो 3 comma 2 का सबसे पहले हम C1 के साथ डिस्टेंस निकालेंगे. उसके लिए this is our x, this is our y. तो it's just gonna be C1 है 1 comma 1, right? तो 3 minus 1 squared plus 2 minus 1 squared का under root, and this is just gonna be 2 squared plus 1 squared का under root, and that's just gonna be under root 5. तो 5 under root. इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आता है? 2.24 under root 5. Yep, 2.24. So this is 2.24. So over here C or C1 में we're just gonna write 2.24. C2 के लिए it's just gonna be the same thing. The only difference is हमारे ये coordinates change होंगे. So it's gonna be 3 minus 8 squared plus 2 minus 1 का squared का under root. That's gonna be 5 squared. नहीं, यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे भी 8 होगा. So it's gonna be 5 squared plus 6 squared plus under root, and that's gonna give you an answer of 7.81. ठीक है. इस तरह करके ना you're gonna fill this entire table up. 7.81. For A we're gonna have 0, comma 9.9. For B it is 1 and 9.22. 1 और 9.22. C का हमने कर लिया. D is 9.90. 0. E is 10.63. 1. And then F is 10.63 and 1. अच्छा, स्ट्रॉन्गली एडवाइस के ना ये सारी एक दफ़ा हाथ से कर लेना ताकि कल एग्ज़ाम में ना प्रैक्टिस हो, क्योंकि इसमें यही होता है कि वेन एवर यू हैव समथिंग रिपीटेटिव वहाँ पे आपकी गलती हो सकती है. अच्छा, द नेक्स्ट स्टेप इज़ असाइनिंग पॉइंट्स टू अ क्लस्टर. ठीक है, अब वो किस तरह करना है ना, हमारे पास डिस्टेंसेस आ गए ना. अब इट्स प्रीटी सिंपल. हमने बस देखना है कि कौन सा पॉइंट ना किस क्लस्टर के करीब है. ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस इफ़ वी टॉक अबाउट ए, राइट, ए का डिस्टेंस फ्रॉम C1 इट्स 0 एंड फ्रॉम C2 इज इट्स 9.9. तो हमने देखना है कि किसके वो ज़्यादा करीब है, विच मीन्स जिस क्लस्टर से उसका डिस्टेंस कम होगा ना, वी आर गोना असाइन दैट पॉइंट टू दैट स्पेसिफिक क्लस्टर. तो ए के लिए इट्स गोना बी, क्योंकि C1 के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ, इट्स गोना बी C1. ठीक है. बी के लिए again C1. C के लिए again it's gonna be C1. In the case of D, 9.9, it's far away from C1 but it's closer to C2, so then we're gonna have C2. For E we're also gonna have C2, and for F we're also gonna have C2. तो इस तरह करके ना you're gonna assign the points, each of the points their specific clusters. ठीक है, तो इससे ना we have the following सिनेरियो. हमारे पास जो C1 है ना, क्लस्टर 1, उसके अंदर है A, B, C, एंड C2 के अंदर हमारे पास आ जाते हैं D, E एंड F. ठीक है, इसके बाद क्या करना है, वी नीड टू अपडेट द सेंट्रॉइड्स. ठीक है, हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए ना, वी नीड टू अपडेट सेंट्रॉइड्स. उसके लिए हम इट्स गोना बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि हम के मीन्स की बात कर रहे हैं. इसमें ना वी जस्ट नीड टू टेक द एवरेज ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स. तो इफ़ आई वांट टू अपडेट क्लस्टर 1, तो क्लस्टर 1 के हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ रही थी, ए बी सी, राइट, ए बी सी, विच वाज 1,1, 2,1 and then 3,2, 3,2. अब each of these has an x coordinate. ठीक है, and each of these has a y coordinate. ठीक है, ये हमारा y coordinate है. अच्छा, अब हमारे पास जो सेंट्रॉइड होगा ना, इट्स ऑल्सो गोना हैव an x and a y coordinate.
तो फॉर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड व्हाट वी नीड टू डू इज़ हमने अपने पॉइंट्स का ना ऑल ऑफ द पॉइंट्स इनसाइड दैट क्लस्टर हमने उनको देखना है. सो इन दिस केस हमने देखना है इसको, इसको और इसको. हम निकाल रहे हैं सेंट्रॉइड एक्स, ठीक है. तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स इन दैट क्लस्टर हमने खाली उनको देखना है. तो दैट्स गोना बी 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है. 1 दिस एंड देन दिस, ठीक है. तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इनका हमने एवरेज लेना है. सो बिकॉज वी हैव 3 पॉइंट्स हमने ऊपर इसका सम ले लिया. वी नीड टू डिवाइड दैट बाय द नंबर ऑफ पॉइंट्स विच इज़ 3. इससे we're gonna have this is just gonna be 6, तो we're gonna have 2, ठीक है. 2 is the x coordinate of our new centroid. Similarly हमने centroid का अगर y coordinate निकालना है cy हम निकाल रहे हैं, ठीक है. Now we're gonna be looking at the other coordinate which was the y coordinate, ये ठीक है. This is y, this is y and then this is y, ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 प्लस 1 प्लस 2 divided by 3, ठीक है. तो that's gonna be 4 by 3 or that is going to be our coordinate for that is just gonna be our like y coordinate for this centroid. I think ये होता है 1.33. अच्छा, अब अगर हमने now if we need to update या we need to write our answer, right, हमने बस ये लिखना है कि new centroid is equal to 2,1.33, ठीक है. ये हमारा नया सेंट्रॉइड आ गया. अब इफ़ दे आस्क यू टू डू दिस फॉर अनदर आइट्रेशन, क्वेश्चन में लिखो इसको 2 आइट्रेशंस के लिए करो या 3 आइट्रेशंस के लिए करो, आपके पास ना इस तरह करके ना एक और सेंट्रॉइड आ गया. अभी तो हमने ए बी सी के लिए किया है ना. वी आर गोना डू द सेम थिंग फॉर सी डी ई एंड एफ. हमारे पास ये जो डिस्टेंसेस हैं ना हमने इनको यूज़ करके डी ई एन एफ असाइन कर दिया था. हमारे पास डी ई एन एफ ये रहे 8, 9, 8 और 8, 9, ठीक है. अब हमने इनके लिए भी करना होगा. हमने इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज लेनी होगी, हमने इनके वाई कोऑर्डिनेट्स की एवरेज लेनी होगी. एंड वी कैन हैव अ न्यू C2, ठीक है. दिस इज़ द न्यू C1, ठीक है, क्योंकि हमने C1 के जो मेंबर्स थे ना उससे निकाला है. तो वी कैन हैव अ न्यू C1 एंड वी कैन हैव अ न्यू C2. तो you're gonna make for the second iteration you're gonna make a similar table. यहाँ पे जिस तरह हमने इस iteration के लिए एक टेबल बनाया हुआ है C1 C2, we're gonna have the new centroids over here, ठीक है, new C1 and then the new C2. same thing, we're gonna calculate the distances. हमारे points same रहेंगे, ठीक है. जैसे हमने पहले यहाँ पे for C we calculated it, यहाँ पे हमारे पास new C का x coordinate आएगा, new C का y coordinate आएगा. let me just show you. 2,1.33 था ना, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1.33 का स्क्वायर, ठीक है. एंड दैट्स गोना गिव यू योर न्यू डिस्टेंस फॉर योर सेकंड आइट्रेशन. सिमिलरली दोबारा से सेकंड आइट्रेशन के लिए यू गोना फिल द टेबल अप और calculate both the distances and then you're gonna assign the clusters. उसके बाद if you see कि आपके clusters same होने, like none of the points are changing, अगर उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ है कि खाली इतने ही आइट्रेशंस के लिए, फेयर इनफ, कैलकुलेट द डिस्टेंसेस, असाइन क्लस्टर्स और आफ्टर असाइनिंग क्लस्टर्स देन अपडेट सेंट्रॉइड्स. तो हमारे पास जो वर्क फ्लो बना है, आई एम जस्ट गोना राइट इट डाउन हियर. सबसे पहले डिस्टेंसेस निकालने थे, उसके बाद आपने क्लस्टर्स असाइन करने थे, एंड उसके बाद यू नीडेड टू अपडेट सेंट्रॉइड्स, ठीक है. दिस इज योर एंटायर वर्क फ्लो फॉर वन आइट्रेशन एंड आई एम टॉकिंग अबाउट के मीन्स ओवर हियर, ठीक है, के मीन्स के लिए. फॉर फजी सी मीन्स नाउ वी गोना मूव ऑन टू फजी सी मीन्स. और हम वो वाली जो क्लास में हमने एग्जांपल नहीं की थी, आई एम गोना बी कवरिंग दैट. फजी सी मीन्स, ठीक है. अब इसमें ना यू हैव मेंबरशिप वैल्यूज़ विच वाज कि आपका एक पॉइंट ना कितने उसमें होता है ना. तो हमने जो क्लास में एग्जांपल सॉल्व की थी ना, इट वाज हमारे पास क्लस्टर्स थे, ठीक है.
वी हैड cluster 1, cluster 2 या centroid 1, centroid 2, ठीक है। आपके पास इस तरह करके एक टेबल था, एंड यू हैड 4 points 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले वी हैड द कोऑर्डिनेट्स ओवर हियर 1,3 2,5 4,8 एंड देन 7,9। यहाँ पे वी हैड द मेंबरशिप वैल्यू 0.8 0.7 0.2 0.1 0.2 0.3 0.8 and then 0.9. One thing to note over here is कि आपकी जो एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट की मेंबरशिप वैल्यूज होंगी ना, देयर गोना ऑलवेज ऐड अप टू 1. सो इफ़ वी टेक 1,3, ठीक है, ये वाला हम कोऑर्डिनेट देखते हैं, इसकी मेंबरशिप वैल्यूज देखते हैं। वी हैव 0.8 एंड देन वी हैव 0.2। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे वी आर गोना गेट 1। सिमिलरली अगर हम 7,9 को देख लेते हैं, ठीक है, इसकी जो दो मेंबरशिप वैल्यूज आ रही हैं 0.1 एंड 0.9, इनको जब हम ऐड करेंगे वी आर गोना गेट 1, ठीक है। तो after you solved your question, always check कि आपकी जो membership values आ रही हैं, if they do not add up to 1, that means you've made a numerical mistake, क्योंकि they will always add up to 1, आपकी 1 से ज़्यादा कभी नहीं होंगी membership values। अच्छा, अब यहाँ पे ना this was our question, ठीक है, we did not have a centroid, तो हमने centroid कैसा निकालना। इसका भी it's gonna be similar, लेकिन in this case we're also gonna have the membership values involved। cluster 1 अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, विच मीन्स हम अब इस रो को देख रहे हैं, दिस स्पेसिफिक रो जिसमें क्लस्टर 1 की मेंबरशिप वैल्यूज हैं। ओके, सो अगेन क्लस्टर 1 के हमारे पास ना दो चीज़ें होंगी। वी आर गोना हैव अ क्लस्टर 1, इट्स अ पॉइंट, ठीक है, लाइक एनी अदर पॉइंट, अ क्लस्टर इज आल्सो पॉइंट। हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट है। तो सबसे पहले हम क्लस्टर 1 का अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो अगेन वी आर गोना बी डीलिंग विद स्पेसिफिकली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दीज पॉइंट्स, ठीक है, हम खाली इनको देखेंगे। मेक श्योर कि यू डू दिस स्टेप केयरफुली, डोंट मिक्स द पॉइंट्स अप, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल मिस्टेक्स सबकी होती हैं, विच इज़ व्हाई यू लूज मार्क्स। क्लस्टर 1 का हम एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, तो C1x, फॉर दैट वी आर गोना बी कंसिडरिंग the x values of these coordinates which are 1, ठीक है, we have 2, we have 4 and then we have 7, ठीक है। we're also going to be considering the membership values क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही है, membership values का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0.8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 का स्क्वायर, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे ना इट्स नॉट बीइंग होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 होल स्क्वायर, ये नहीं है, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स इसलिए हैं बिकॉज वी हैव अ प्लस साइन, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट्स ईजियर टू सेपरेट देम, यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। होल स्क्वायर नहीं करना, दैट्स गोना गिव यू एन इनकरेक्ट आंसर। अब हमने इसको डिवाइड करना है by the sum of squares of membership values. That's gonna be 0.8 squared plus 0.7 squared plus 0.2 squared plus 0.1 squared. Again, अब इसको इस denominator में it's not this 0.8 plus 0.7 plus 0.2 plus 0.1. इन सब को ऐड करके हम स्क्वायर नहीं करेंगे, we're adding the squares of the individual membership values, क्योंकि these two are not equal, इनका आंसर सेम नहीं आएगा। होल स्क्वायर नहीं करें, हम स्क्वायर करके ऐड करें, इससे ना you're gonna have the x-axis नहीं, x coordinate of the cluster 1 which is 1.568, ठीक है, this is the x coordinate of cluster 1. For the y coordinate of cluster 1, C1y, it's gonna be the same thing, the only difference is आपके पास जो फॉर्मूला में चेंज हो रहा होगा ना, वो अब हमने एक्स एक्सिस के बजाय we're gonna look at the x coordinate के बजाय we're gonna look at the y coordinate, so that's gonna be
ठीक है. Okay, so that's gonna be 3 multiplied by 0.8 का square plus 5 multiplied by 0.7 का square plus 8 multiplied by 0.2 का square plus 9 multiplied by 0.1 square. अच्छा स्क्वायर अंदर है यहाँ पे, मेरी आगे पीछे है, लेकिन अगेन स्क्वायर इसके अंदर है. We're gonna divide that by the sum of membership values, which is 0.8 squared plus 0.7 squared plus 0.2 squared plus 0.1 squared. Again इससे हमारे पास एक y coordinate आ जाएगा, which is 4.051. तो our centroid it's gonna be, हमारा जो centroid बन रहा है it is 1.5 68 4.5 4.051. ठीक है, हमारा सेंट्रोइड बन गया. अच्छा, now we're gonna repeat this process for the second cluster. उसके लिए ना the difference is going to be कि हमने जो membership values ली है ना, they're gonna be the ones associated with cluster 2. तो जहाँ पे हमारे पास 0.8 था, अब हमारे पास वहाँ पे 0.2 होगा. जहाँ पे हमारे पास 0.7 था, we're gonna have 0.3. Similarly हमने C2x पहले निकालना है, which would be हमने इस membership value के साथ 1 multiply करना है, फिर 2 फिर 4 फिर 7. उससे हमारे पास again we're gonna get values for C2, ठीक है, which are going to be 5.34 5.34 8.21. ठीक है, this is our second centroid. अब इसके बाद ना we need to calculate the membership values. ठीक है, new membership values. ठीक है, अब new membership values निकालने के लिए ना we need to calculate the distances associated with the new centroids. तो again जैसे हमने पहले टेबल बनाया था ना for our points. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर पॉइंट we're gonna need to make another table, distance table. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास we're gonna have points. हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं? 1 3 2 5 4 8 7 9. 1 3 2 5 4 8 7 9. ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए. ठीक है, C1 और C2 हमने जिस तरह पिछली दफ़ा यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला था इन के मीन्स, हमने बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है. तो आई एम जस्ट गोना डू इट फॉर C1. ठीक है, पहली वाले के लिए, क्योंकि द प्रोसेस इज़ द सेम फॉर एवरीवन ऑफ द पॉइंट्स. तो हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो हमने सबसे पहले पॉइंट 1 का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम क्लस्टर 1. क्लस्टर 1 के जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे थे दे वर 1.5 एंड 1.56 और 4.051. तो 1.568 4.051 ये हमारे पास सेंट्रोइड वन था. पॉइंट 1 वाज 1,3. तो द पॉइंट इज 1,3. इसके डिस्टेंस निकालने के लिए इसका 1 माइनस 1.568 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4.051 का स्क्वायर. अगेन इसको बस अंडरूट करना है, इसका अंडरूट लेना है और इसको सॉल्व करना है. we're gonna get the distance for C1 from cluster 1, which will be
1.19, ठीक है, दिस इज गोना बी योर डिस्टेंस। अब हमने ना क्लस्टर वन, सॉरी पॉइंट, इसी सेम पॉइंट का ना हमने क्लस्टर टू के साथ डिस्टेंस निकालना है। तो दिस फार्मूला अगेन इट्स गोना बी द सेम, लेकिन द डिफरेंस इज गोइंग टू बी द क्लस्टर वैल्यूज। हमने 5.34 और 8.21 यूज़ करना है, तो इट्स गोना बी 1 माइनस 5.34 स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड प्लस 3 माइनस 8.21 का स्क्वायर, 8.21 का स्क्वायर, इसको अंडर रूट करना है and we're going to get the second distance which is 6.78. अब using this, अब हमारे पास distances आ गए ना 1.19 and 6.78, तो this is 1.19 6.78। इस तरह करके we're going to fill this entire table up। membership values के लिए we have this formula। मैम ने क्लास में ज़रा डायरेक्ट लिखवाया था, कोई एक्सप्रेशन के पॉइंट में था, लेकिन आई हैव चेंज इट अ बिट ताकि इट्स इजियर टू अंडरस्टैंड। हमने अगर किसी भी पॉइंट की मेंबरशिप निकालनी है ना, ठीक है, उसके लिए व्हाट वी डू इज डी एम प्लस डी एम डिवाइडेड बाय डी सी वन डी सी टू। इसको हमने m minus 1 और all of this is going to be raised to -1। अब इसमें ना it's this is gonna help you memorize it। dm is the distance from the cluster जिसकी हम membership values निकाल रहे हैं, ठीक है। m का मतलब है membership, ठीक है। हम एक पॉइंट की अगर मेंबरशिप वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, we're gonna उस पॉइंट के ना दो डिस्टेंसेस होंगे, डिस्टेंस फ्रॉम C1, डिस्टेंस फ्रॉम C2, ठीक है। m इज़ जस्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर्स, तो दिस इज गोना बी 2 क्योंकि हमारे पास C1 और C2 है, -1 इट्स जस्ट द नंबर। अगर हम पहली वाली आइट्रेशन की बात करें 1.19 6.78, ठीक है, हमारे पास जो पॉइंट है इट इज़ 1,3, उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम C1 बन रहा है इट इज़ 1.19, ठीक है। D2 बन रहा है 6.78, ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ किस फॉर्मूला में किस डालना है। लेट्स से वी आर कैलकुलेटिंग इस पॉइंट की मेंबरशिप फ्रॉम क्लस्टर 1, ठीक है। हम क्लस्टर 1 के साथ निकाल रहे हैं ना, तो हमारा जो DM होगा ना इट्स गोना बी डिस्टेंस फ्रॉम क्लस्टर 1, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा न्यूमरेटर में इट्स गोना बी 1.19, ठीक है, प्लस 1.19, ठीक है। दिस इज गोना बी डिवाइडेड बाय DC1 which is 6 sorry DC1 it is 1.19 और यहाँ पे आ रहा है 6.78, ठीक है। हमने इस तरह करके लिखना है and this is gonna be 1 divided by 2 minus 1। this is just gonna be 1 divided by 1, तो you can ignore this। अगर हम बार बार लिखें you just need to show it once कि आप फॉर्मूले में क्या डाल रहे हो और इसका रेसिप्रोकल। this is gonna give you the membership value for cluster 1 of this specific point। अगर हम इसी पॉइंट की क्लस्टर 2 के साथ वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना, तो हमने क्या चेंज करना होता है, द ओनली थिंग दैट्स गोना चेंज इज़ द न्यूमरेटर, क्योंकि अब हमारा DM इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द क्लस्टर जिसकी हम मेंबरशिप वैल्यू निकाल रहे हैं। तो द डिफरेंस वुड बी 6.78 प्लस 6.78, न्यूमरेटर में हमारा सेम ही रहना है, इट्स ऑलवेज गोना बी द डिस्टेंसेस फ्रॉम द क्लस्टर्स 6.78। again इसको this is just going to be 1 divided by 1 and it's the entire thing it's going to be reciprocal। इससे हमारे पास membership value आ रही है for C2, इससे हमारे पास आ रही है membership value for C1। अच्छा, तो अच्छा I forgot one thing, यहाँ पे स्क्वायर्स भी हैं। हाँ एक सेकेंड,
यहाँ पे स्क्वायर्स भी होंगे, हर चीज़ स्क्वायर हो रही होगी, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आएंगे। दिस इज़ योर फार्मूला। स्क्वायर ज़रूरी है, ठीक है, स्क्वायर को नहीं करना। दैट्स जस्ट गोना गिव यू योर आंसर। और उसके बाद आपके पास C11 आ रहा है, 0.97। C2 आपके पास आया था 0.03। जो मैंने पहले मेंशन की थी बात कि योर मेंबरशिप वैल्यूज आर गोना ऐड अप टू 1 ना, वो यहाँ पे अप्लाई होगी कि 0.97 प्लस 0.03 इट्स गोना ऐड अप टू 1। तो अगर आपका 1 नहीं आंसर आया, दैट मीन्स यू डन समथिंग रॉन्ग। इससे आपके पास मेंबरशिप वैल्यूज आ जाएंगी और फिर आपकी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। फॉर द सेकंड आइट्रेशन यू कैन यूज योर न्यू मेंबरशिप वैल्यूज इन दिस फार्मूला, जिसमें हमने एक एक करके ना cluster 1 cluster 2 के x y coordinates निकाले थे। we're going to use the new membership values to calculate the new coordinates of the cluster, और again उसके बाद फिर हम updated cluster से we're going to calculate the membership values again, so that's going to be another iteration। तो इसके लिए हमने पहले cluster निकाला, cluster के बाद हमने distance निकाला, distance से हमने new membership values निकालना, ठीक है। तो this is one iteration। if they ask you to do another iteration, you're going to use the new membership values to calculate the new cluster के साथ distances और फिर membership values। that's it for clustering। इसके इसी तरह के numerical जाएंगे, इन दोनों में से एक आना ही आना है, क्योंकि in the entire course this is like the most lengthy numerical, तो of course it's gonna come, ठीक है। okay, good luck, Allah Hafiz।